Good afternoon, everyone. This is Chandni Joshi, and welcome to this thought-provoking 40-minute session featuring a very smart and a talented lady, Mrs. Bela Bhatia, who is going to bring a wealth of knowledge, experience, and compassion on the table. Our keynote speaker today is Bela Bhatia, an independent human rights lawyer, researcher, and writer who has dedicated her life to championing the rights of marginalized communities. Currently based in Bastar, Chhattisgarh, Bela ma'am has an excellent academic background, including a doctorate from the University of Cambridge and degrees in social work and law from TISS, Mumbai and Gujarat University. Bela ma'am's career began with grassroots activism in rural Gujarat, and she has also worked on peace and human rights initiatives in Iraq and Palestine. She is the co-author of Unheard Voices, Iraqi Women on War and Sanctions, and co-editor of War and Peace in the Gulf, and the author of her latest work, India's Forgotten Country, A View from the Margins, published by Penguin Random House in May 2024. Moderating this session is Dr. Amina Wali, who is BE Electronics and Communication, MCA, MBA, and currently serving as the principal of Sadabai Raisoni Women's College. So now, without any further ado, let's start the session. Over to you, ma'am. The topic for today is witnessing the unheard stories of resistance and hope from India's margins. Right? So, talking about resistance, I was just going through your biography, and there it has been mentioned that you converted from an upper Hindu Brahmin family to Buddhism. Well, first of all, thanks for the very kind introduction, and hello Amina, hello everybody here. I'm very glad to be here and glad that we have the next 30-40 minutes to converse. So Amina has mentioned about a time in my life when I decided to convert. I was from an upper caste family, not Brahmin, but an upper caste family, a Punjabi Hindu family. And since I converted in 2003, and this was because this whole question of caste, continued to sort of come up when I first began my work in rural Gujarat. So this was in the villages of Sabarkantha district, and almost the first question that people ask is in Gujarati, "Tamari jati suche?" तो बार बार ये जाति का प्रश्न बार बार आता था, और जब पहली बार हिंदी में भी बीच बीच में बोलूँगी, चलेगा ना? हाँ, तो बीच बीच में जब when this question would come, आपकी जाति क्या है? And I have been a strong believer of equality, and I felt that even admitting that you were from this jati, to my mind at least, was not okay, because I felt that मैं मनुष्य जाति में मानती हूँ, तो मैं क्यों बताऊँ आपको मेरी जाति क्या है, और मैं आपसे नहीं पूछ रही हूँ आपकी जाति क्या है, क्योंकि in rural Gujarat of that time, and I think even today in many parts of the country, not only in rural areas, but even in urban areas, even in educated circles, there's immediately, like as soon as you are understood to be from a particular caste, immediately I think you have a certain privilege, and if we firmly believe in equality, then I think, even to my mind at least, even though it's just a sociological fact that we were born in a particular caste, it's nothing to do with, it's just by chance. Any of us could have been born in any other caste. मगर ये immediately आपको एक advantage देता है
you know, as soon as you mention your caste, and if it happens to be a upper caste, you are treated in a particular way. In rural Gujarat, I was witness to this. You know, as soon as आपकी जाति ये है, तो आपका immediately there's a certain conclusion drawn. You know, your treatment is you know, accordingly. And this is what, मतलब मेरे मन में उसके खिलाफ एक बहुत ये था कि मैं इसमें I don't want to be part of this, and if I believe कि मैं मनुष्य जाति की हूँ, मैं मानव जाति में मानती हूँ, तो that is all that I will say. And in my 5 years in Biloda Taluka in Sabarkantha district, I continue to maintain that. I kept saying मैं मानव जाति की हूँ, and that was it. So even once मेरे को जब एक कमरा मतलब रेंट पे भी लेने की बात थी, तब भी the landlady was asking the same thing, and I said no, मैं मानव जाति की हूँ, and हम सब बराबर हैं, इसमें मानती हूँ. So initially there was a resistance because she was from an Brahmin family, but उन्होंने मुझे कमरा दे दिया और मैं वहीं रही प्रेम से काफ़ी समय तक, और फिर दूसरे गांव में रही. एंड ये जो इसलिए कन्वर्जन का मैंने इसलिए सोचा क्योंकि मैंने ये पाया कि इवन इफ़ हमारे प्रैक्टिस में हम इक्वालिटी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, मगर क्योंकि हमारा जन्म एक किसी भी जाति में हुआ हो, उसका ठप्पा आपके सिर पे लगा ही रहता है. तो मैंने ये सोचा कि फिर मैं अपना ठप्पा अपना चॉइस का रखूँगी. मैं क्यों मेरे जन्म वाला ठप्पा लेके क्यों मैं घूमूँ, ये सोचकर मैंने सोचा मैं चूज़ करूँगी कि मेरे ऊपर क्या ठप्पा लगना चाहिए. ये सोचकर, और क्योंकि मैं बहुत प्रेरित रही हूँ डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर से, तो उसी समय मैं यहाँ पर इधर आई, यहाँ नागपुर में, और नागपुर की दीक्षा भूमि में, वही मेरा पहला टाइम था नागपुर में, और जहाँ पे जो मास कन्वर्जन्स होते हैं वहीं पे बहुत लोगों के साथ मैंने भी कन्वर्ट किया. तो ये है मेरे कन्वर्जन की कहानी. और सो द challenge was then and now to just practice our what we believe in. That's such a wonderful thought. I guess if all of us think on the same lines, the religious divide that we are facing, which is getting from bad to worse, would be just washed away. I will just like to add one small point to what I said so far. That abhi tak in society what happens is it is from the disadvantaged caste, so-called in quote untouchable caste, that जो ये conversion की तरफ जो जाते हैं. जबकि मेरे को लगता है कि भारत देश में और हमारा preamble में साफ साफ equality लिखी है. It should not be a matter only about the disadvantaged caste. It's not this whole caste system and the poison that it is, the way it divides all of us into categories, even at birth itself. It's हम सबका ये कंसर्न होना चाहिए. ये केवल दलितों का की बात नहीं है. ये अगर एक आक्षेप, एक क्या बोलेंगे, एक धब्बा है, एक ये है, तो ये हम सबका जिम्मेदारी है. ये केवल दलितों की जिम्मेदारी नहीं है. तो इसीलिए मैं मानती हूँ कि इवन आप किसी भी कास्ट में पैदा हुए हो, अपर कास्ट में कहीं भी पैदा हुए हो, आप इक्वालिटी की तरफ क्या कदम उठाते हैं और अपने ज़िंदगी में आप क्या कदम उठाते हैं, ये बहुत ज़रूरी है. Thank you so much, ma'am. I mean, that was so well explained. And as the author of India's Forgotten Country, A View from the Margin, there's some questions that I would like to ask you based on that book. Sure. See, your working life began in rural Gujarat in the 80s. Right. And the first chapter of your book is based on a revisit there just after the communal violence of 2002. So can you just share some memories of your work there? So as I mentioned earlier, that I had begun my life after my MA. I was very young, like some of you, 21, 22-year-old. And so my life began there. And so for the next 5 years, I was part of this trade union called Shramjeevi Samaj. And there basically we were struggling for land rights, for minimum wages. That time there was a very acute drought in the area. So we were fighting for the implementation of the drought relief plan. So we were basically fighting for
laws that had not been implemented. And the Shramjeevi Samaj Trade Union itself was formed after it had fought for land that had to be allocated to the landless and marginal farmers of the area, but it had not been done. And then all the Shramjeevis belonging to different castes, Dalits, Adivasis, OBCs, so in the lower rungs of society, most of them completely landless. They had fought a very, strong movement they had led, and they were able to get 1,400 acres of land from the government, something which the government was supposed to do in 1962 but had not done until 1978 when the movement began, and then finally they got this land in the early 1980s after मतलब बहुत संघर्ष उनको करना पड़ा था. और फिर उसके बाद ये 1,400 acres का they had formed agricultural cooperative societies and they were वो लोग सामूहिक खेती कर रहे थे. तो यहाँ पे मैंने ये जो एरिया है ये साबरकांठा ज़िला है जो राजस्थान से बॉर्डरिंग है. तो बहुत कुछ कॉमन है दोनों स्टेट्स में, इंक्लूडिंग कैमल्स एंड अरावली हिल्स एंड सो ऑन. सो यहाँ पे मैंने पाँच साल काम करके फिर मैं यहाँ से चली गई थी. फिर जब बीच में आती थी, देन जब 2002 में जब राइट्स हुए तब मेरे को किसी ने बताया और मैंने पढ़ा कि साबरकांठा में भी राइट्स हुए हैं, which I could not believe because I had lived there and there was no trace of any kind of communalism during the time that I had lived there, which was from 1985 to 1990. There were no organizations also like Bajrang Dal and so on in our area at least. So therefore I went back. I wanted to see for myself what was the situation. And I was actually quite shocked to see that practically in every village of the area, and these villages I knew intimately, ये पूरी चीज़ फैल गई थी. और उस समय ये राइट्स में चाहे एक गांव में एक मुसलमान हो या 10 घर हो, 20 घर हो, जितने भी घर हो, एक गांव से उनको भगाया गया था. एंड ये बहुत ही सिस्टमैटिकली हुआ था वहाँ पर, मतलब 3 ग्रुप्स में बटे हुए थे लोग. तो एक बाड़वा वाला मतलब जो जलाएंगे घर, एक लुटवा वाला जो लूटेंगे घर, हाँ इस तरह से, और एक कापवा वाला क्योंकि वहाँ पे कई तरह का हिंसा भी हुआ था उस समय. तो इस तरह से पूरा वहाँ पे बहुत ही सिस्टमैटिकली, और ये ना मोबाइल का अर्ली डेज था. सो इवन द मोबाइल हैड बीन यूज्ड to mobilize this kind of, wherein tractors they would come and इसी तरह से. and it's so मतलब it's amazing to see कि बसे बसाए communities कितने जल्दी डिवाइड हो जाते हैं या किए जा सकते हैं if powerful forces do that and so on. so यहाँ पे वो मुझे देखने मिला. and then सभी कैंप्स में भी, जहाँ रिलीफ कैंप्स में मैं सभी लोग भागे थे और बहुत ही पीड़ा थी. बिकॉज जैसे कोई खाना खा रहा है और उस समय आ गए लोग, तो मतलब अपना आधा अधूरा खाना छोड़ के भागे. कई लोग बोल रहे थे हम चप्पल पहनने को भी हमको टाइम नहीं था. एक बूढ़ी बोल रही थी कि मेरे को मेरी मेडिसिन का दवा लेने के लिए हमारा पास चमची पन थी, चमची भी नहीं है, कुछ नहीं है. मतलब आप सब जिस घर से आते हो, आप इमेजिन करो कि आपको सडनली ऐसा कुछ हो, कुछ एक तूफ़ान आए. और उस समय तो राइट्स को तूफ़ान ही बोलते भी थे वहाँ पे गुजरात में, कि एक तूफ़ान आए कि आपको उसी क्षण आपको वहाँ से जाना पड़े, भागना पड़े. आपकी वो किताब, आपका वो ड्रेस, आपका वो सैंडल, आपकी वो बैग, आपका वो सब कुछ उसी समय 1 मिनट में छूट जाए. जस्ट इमेजिन व्हाट इट इज़. एंड देन बाद में जब मैं इस पर पूरा मैंने थोड़ा अध्ययन भी किया, तो I could very clearly see how orchestrated it was because I came across a leaflet जो वहाँ पे circulation में था. तो ये leaflet तो मैं पूरा तो नहीं पढ़ूँगी, बहुत ऐसे 1 पेज का है, लंबा है, जो हिंदू भाइयों और बहनों के लिए ही लिखा, मतलब एड्रेस है.
और जय श्री राम पहले से मतलब शुरू से बोले हैं, मगर इसमें एक पार्ट है जो मैं आपको पढ़ना चाहूँगी, जो ये कह रहा है कि इकोनॉमिक एंड सोशल बॉयकॉट करना पड़ेगा मुसलमानों का। हाँ, तो ये मैं इसलिए आपको पढ़ के सुनाना चाहती हूँ क्योंकि एटलीस्ट जब मैंने पढ़ा तो मुझे लगा ये कितना एक पॉइजनस चीज़ है जो सोसाइटी में डाली जा रही है। तो उसमें वो ये लीफलेट के द्वारा वो ये कह रहे हैं कि फ्रॉम टुडे आई एज वेल एज माई फैमिली मेम्बर्स विल परसुएड आवर नेबर्स, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स टू इम्प्लीमेंट द फॉलोइंग एज लॉन्ग एज वी लिव एंड देयरबाय बिकम अलर्ट गार्डियंस ऑफ आवर नेशन। मतलब देश के नाम पर हम ये करने वाले हैं। नाउ वी शैल नॉट अलाउ मिस्टेक्स लाइक दोज मेड बाय पृथ्वीराज चौहान टू हैपन अगेन। जो भी हिस्ट्री में का मिसरीडिंग या जो भी, सो इट्स वेरी सिलेक्टिव द होल थिंग। एंड जो लिखा गया है वो मैं पढ़ रही हूँ। इसमें लिखा है, आई शैल नॉट बाय एनीथिंग फ्रॉम द हैंड कार्ट और शॉप ऑफ अ मुस्लिम, whether it is vegetables, sweets, liquor, kites, household items or anything else, however cheaper the price may be. I shall never give my scooter, jeep, truck or tractor for repair in the garage of these traitors or even go there to fix a puncture. मतलब एकदम एक साइकिल वाले तक पहुंच गए। To befriend a Muslim boy or girl is a risk to life. Therefore I shall have no relation with them. सोशली अब कंप्लीट बाइकआउट करिए। आई शैल नेवर रेंट अ ट्रक, ट्रैक्टर और जीप, क्योंकि यही सब टाइप के मतलब मुस्लिम्स का जो भी ट्रेड है, एक एक ट्रेड को उन्होंने पकड़कर ये इंस्ट्रक्ट किया है कि हम उनसे कोई रेंट नहीं करेंगे, उनके द्वारा ओन्ड कोई भी जीप में हम बैठेंगे भी नहीं। आई शैल कीप एन ओम साइन ऑन द एंट्रेंस ऑफ माई हाउस एंड मैं तिलक लगाऊंगा, एंड आई शैल सिट ओनली इन द जीप और व्हीकल जिसमें ओम लिखा हो। I shall not employ a Muslim as a driver for my private or business vehicle. I shall not have Muslims as partners in any kind of trade or business. I shall not do anything to encourage them in any way. I shall keep some type of weapon for my self-protection and if need be for the protection of the Hindu society. I will not hesitate or be afraid to use it. I shall not give a single paise to Muslim mendicants who habitually go around with incense smoke and expect small change. मतलब भिखारी, एक मुस्लिम भिखारी को भी मैं भीख नहीं दूंगा। I shall be alert that my sisters and daughters do not befriend or fall into the love trap of a Muslim at school, college, office, whatever. I shall not go to any Muslim teacher or professor for private tuitions or to learn any art. Wholeheartedly boycott the hotels of the traitors as well as their acting, songs and films. I shall not buy any cement, stone or other material from the yards of the Muslims, nor will I go to them for any carpentry work. और इसका ये तो अंग्रेज़ी में ट्रांसलेशन है, इसका अगर आप ओरिजिनल पढ़ते हैं हिंदी में तो ये और भी पॉइजनस लगता है। तो इस तरह का जब आप मटेरियल डायरेक्टली जब आप देखते हैं तब आपको समझ में आता है कि ये किस तरह से बाय डिज़ाइन, बाय ऑर्केस्ट्रेशन ये मतलब एक चीज़ पूरे सोसाइटी में ये बोई जा रही है। और आई विल लाइक टू जस्ट एंड दिस कमेंट by just recalling one old man whom I had met during my research in the riots of 2002 in Sabarkantha, कि जब मैं ये बूढ़ा आदमी का एक गल्ला था, हाँ छोटा जो गल्ला होता है, वो खुद काफ़ी गरीब था, वो उस गले में बस वो टॉफ़ी वो सब बेचता था। तो वो मुझे बोल रहा था कि मुझे सबसे दुख ये लगता है कि बच्चे अब मेरे पास नहीं आते। मेरे इधर के मोहल्ले के बच्चे मेरे पास आया करते थे, मैं उनको टॉफ़ी दिया करता था, अब मेरे पास बच्चे नहीं आते, उसका दुख ये था। तो बस इसमें इतना ही है कि ये एक तरह का हमारे देश में जो सेक्युलरिज्म भी हमारे प्रियम्बल में है और हमारे इक्वालिटी के साथ साथ फ्रेटर्निटी भी हमारे प्रियम्बल में है। तो ये हम सबके पास चैलेंज है और ये इस तरह का रिसर्च ये दिखाती है कि हम लोग के ये डिसहार्मनी जो देश में पूरा मतलब एक तरह से फैलाई जा रही है कि उसको कितना कॉम्बैट करने की ज़रूरत है। It's actually scary to know, like we are just puppets in the hands of politicians. Yeah. The human mentality is such that you tend to get carried away. So the youth sitting here, I can see a lot of young students. It's an appeal to all of you to get over this, because you all are the future of tomorrow. So the country will be in your hands. You need to look into these issues.
your PhD, Right. she's also Dr. Bela. So your PhD was on the Naxalite movement in central Bihar. Right. And you spent a lot of time there. So what motivates people to join this movement, the Naxalite movement? Is it just to, create some kind of terrorism, or is it like the Robin Hood culture that was that the initial purpose? See, I went back to Bihar in the mid 1990s because मैं बिहार में पैदा हुई थी एंड बचपन में मैंने बहुत मतलब मैं तो एक टाउनशिप में रहती थी, so I was directly not affected by the poverty, but the poverty of those times had always remained with me. तो जब मैं गुजरात में काम करती थी वो भी गरीबों के बीच में ही था, मगर मुझे हमेशा ये पता था कि बिहार में ज़्यादा गरीबी है। और बिहार आप जानते होंगे पूरे देश में एक प्रसिद्ध भी, मतलब अभी भी, उस समय भी था, अभी भी है कि मतलब गरीबी के लिए। तो इसलिए मेरे मन में था मैं वापस बिहार जाऊं। तो जब मैंने पीएचडी के लिए सोचा तो मैं वापस बिहार ही गई और मैंने सोचा एक कंटेम्प्रेरी मूवमेंट को स्टडी करूं। तो कंटेम्प्रेरी मूवमेंट उस समय नक्सल मूवमेंट, वहाँ पे मिड 1990s की बात है ये उस समय नक्सल मूवमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग था वहाँ पर। तो नक्सल मूवमेंट के भी 13 जितने फैक्शंस थे, तो मैंने उसमें से 3 फैक्शंस स्टडी किए, लिबरेशन, पार्टी यूनिटी एंड एमसीसी। और उस समय नक्सल मूवमेंट को वहाँ पे गरीबों की पार्टी कहा जाता था। तो मैंने 50 जितने गांव 51 विलेजेस इन 5 डिस्ट्रिक्ट्स को मैंने 2 सालों तक मैं घूम कर मैंने स्टडी किया और मैंने यही पाया कि मतलब लोगों से बहुत बातचीत हुई। तो मैंने ये देखा कि ये जो मास बेस है मूवमेंट का, और ये हम ध्यान रखें कि जब मैं ये कह रही हूँ मैं मिड 90s की बात कर रही हूँ, मतलब हमें हमेशा जब मतलब टाइम का एक तो हमें देखना पड़ेगा, हमें लोकेशन का भी ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि पूरे देश में लोकेशन के अलग अलग इतिहास है ना। तो द बिहार ऑफ दोस टाइम्स में मतलब मिड 90s की जो बात है, तो उसमें मैंने देखा कि ऐसे कई एरिया हैं जहाँ पे ये जो सेंट्रल बिहार है जहाँ पे 30% लैंडलेसनेस है, मतलब बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में ज़मीन बिना वाले लोग। तो मतलब ज़मीन बिना मतलब उनके पास दूसरा भी कुछ नहीं है, वो खेतीहर लोग हैं, खेती से ही मतलब और कमाने से मजदूरी से जीते हैं, मगर उनके पास ज़मीन ही नहीं है। तो वो किस पर निर्भर है? वहाँ के ज़मींदार पर, है ना। तो देश में स्वतंत्रता के बाद 1950 में लैंड रिफॉर्म एक्ट बना, मगर लैंड रिफॉर्म एक्ट का कभी भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। तो इसीलिए वहाँ पे हमको ये एक बहुत ही एक्यूट इनइक्वालिटी वहाँ पे देखने को मिली। जो वहाँ का गरीब था वो बहुत गरीब था, वो गरीब मैंने भिलोड़ा में भी नहीं देखा जितना गरीब मैंने उस समय ये 5 जिलों में देखा, भोजपुर, जहानाबाद, गया, पटना, औरंगाबाद। तो गरीब, बहुत गरीब। और जो उसका जो मतलब उसके जो घर थे उनके साथ मैं रही भी हूँ, तो घर में दरवाज़ा भी नहीं है, मतलब वो खेती, वो अपने राइस फील्ड से वो स्ट्रॉ ला के उसका बनाते थे, रात को ठंडी में ओढ़ने के लिए उसी को ओढ़ते थे, और खाना खिलाने के लिए, जैसे मैं गेस्ट हूँ वहाँ मुझे खाना खिलाने के लिए बोरी उनके पास रहेगी, एक खाट मंगाने के लिए वो किसी से मंगाएंगे तो आपको खाट पे बिठाएंगे, खाना खिलाने के लिए कुछ चावल एक घर से लेंगे, कुछ एक अचार कहीं से लेंगे, एक दूसरे पड़ोसी से लेंगे, अगर किसी के घर कुछ सब्जी बनी है तो किसी से लेंगे। तो ये वहाँ की गरीबी मैंने देखी, और यही लोग थे जो मास बेस में थे। तो इसमें क्या था कि उनकी, जैसे मैंने कहा, वो किस पर निर्भर थे अपनी कमाई के लिए, तो ज़मींदार पर। तो ज़मींदार वो सबको वो लोग मालिक बोलते थे, हाँ। तो मतलब मालिक का मतलब क्या है आप जानते हो। तो और लिटरली वहाँ पे ये पोजीशन यही था कि वो उनको ओन करता है एक तरह से, कोई टाइमिंग नहीं, वर्क टाइमिंग नहीं, मतलब आप सुबह उठोगे और आपको मालिक के घर जाना है, सूरज अस्त होगा तो आपको घर वापस आना है। स्लेवरी काइंड ऑफ अ थिंग। फिर तो नो टाइमिंग्स। फिर जो मज़दूरों की जो औरतें हैं वो इज़्ज़त, मतलब वो भी औरतें भी उनके लिए फ्री हैं एक तरह से। वहाँ पे मेरे जाते जाते ये प्रथा ख़त्म हो चुकी थी, नक्सलियों के कारण ही ख़त्म हुई, मगर ये प्रथा क्या थी? डोला प्रथा। डोला प्रथा में क्या था कि पहली रात ये मज़दूरों की पत्नियों को पहली रात शादी के बाद इसके मालिक के घर जाके सोना है,
हाँ, तो ये इस तरह की प्रथा थी। फिर रेप बहुत कॉमन था, जो मिनिमम वेज है वो आपको मिल नहीं रहा है। हाँ, तो और वहाँ पे अगर आप जा और ये जो ये सब हम क्या बोल रहे हैं, इकोनॉमिक सिचुएशन बताए। साथ में क्या है, सोशल क्या है कि आप सब नीची जाति वाले लोग हैं, आप और वो सब ऊंची जाति वाले हैं, या तो एकदम ऊंचे हैं या मध्यम हैं। तो एकदम ऊंचे वहाँ पे भूमियार राजपूत जाति वहाँ पर है, और जो मध्यम में वहाँ पे कोयरी, कुर्मी, यादव हैं। तो ये सब वहाँ की समृद्ध जातियाँ मानी जाती हैं, और बाकी जो भी हैं, चाहे वो ओबीसी भी हों या दलित हों, जो भी हों, वो सब उनको नीचे बोलते हैं। उसको वो लोग डेरोगेटरी ढंग से राड रैयान बोलते थे, मतलब उनके नाम भी नहीं लेते थे, इस तरह की स्थिति। तो सोशल एक्सप्लॉयटेशन, ये तो आपको मैंने इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन बताया। सोशल एक्सप्लॉयटेशन भी बहुत, मतलब उनको नाम से भी नहीं बुलाना, उनको आप साफ कपड़े पहन लिए हो तो इट्स अफ्रॉन्ट, जूते पहन के कैसे चल सकते हो, आप अपने घर के सामने खाट पर कैसे बैठ सकते हो। दलित वॉज ओनली अलाउड टू सिट ऑन अ चौकी, नॉट अ खाट। हाँ, तो इस तरह का मतलब बहुत अत्याचार, और छुआछूत तो मानते ही थे, जबकि वही लोग आपके घर में काम कर रहे हैं, घर के अंदर भी वही काम कर रहे हैं, आपके खेतों में भी वही काम कर रहे हैं, उनकी पत्नियों और उनकी बेटियों से आप बलात्कार भी कर रहे हैं। उस समय आपको सब कुछ आप छू सकते हो, उनको आप सब कुछ कर सकते हो, बाकी समय में वो आपके लिए अछूत हैं। तो ये स्थिति वहाँ पे सोशली ये देखने को मिली। फिर पॉलिटिकली क्या देखने को मिला, पॉलिटिकली ये देखने को मिला कि इसके बावजूद कि वहाँ पे इतने डिकेड्स ऑलरेडी हो चुके थे स्वतंत्रता के, वहाँ पे बूथ कैप्चरिंग होता था। पूरा का पूरा एंटायर बूथ्स यूज्ड टू बी कैप्चर्ड बाय द अपर कास्ट, एंड द अपर कास्ट यूज्ड टू कीप प्राइवेट मिलिशिया, मतलब उनके प्राइवेट आर्म्ड उनके गुंडे रहते थे। तो और ये जो गुंडे हैं, इनका नेक्सस रहता था पुलिस के साथ में, एमएलएस के साथ में। हाँ, तो क्योंकि वो सब परिवार वही होते थे, उन्हीं का ट्रक भी चल रहा है, बिजनेस, लोकल बिजनेस भी उन्हीं का है। तो पूरा जो, तो देश में कोई भी सरकार चल रही हो, मगर जो वहाँ का आम मजदूर है, उसके लिए किसकी सरकार, उसके लिए यही लोग उसकी सरकार थे, उसके माई बाप थे। तो वहाँ पे जब लोगों को मैं जब पूछती थी कि एक कि आपको नक्सली शब्द से क्या समझ में आता है, नक्सली बोलते रहते हैं लोग, नक्सलाइट का क्या मतलब है, क्योंकि मार्क्स लेनिन माओ को आप क्या जानते हो, मार्क्स लेनिन माओ के बारे में। तो वो लोग बोलते थे कि ये सब तो हम नहीं जानते हैं, मगर हम नक्सली को कैसे समझते हैं, तो नक्सलाइट, नेक्स्ट लाइट ऐसा। या एक इंटरप्रिटेशन किसी ने बताया कि क्योंकि नक्सलाइट तो सीधे वो लोग एमसीसी जैसे जो माओइस्ट कम्युनिस्ट सेंटर था, वो तो पूरे हिंसा में भी मानते थे वो लोग। तो जो अपर कास्ट जो शोषण कर रहा है, जो उसको कई बार उन्होंने भी मैसेकर्स किए अपर कास्ट लोगों के। तो इसलिए वो बोलते थे कि जैसे जो 6 इंच छोटा करता है, ऊपर से 6 इंच छोटा करता है, हाँ, तो उस और लाइट लाता है। हाँ, फिर एक आदमी ने जैसे कहा कि क्योंकि नक्सलाइट बोलकर उनको बहुत प्रताड़ित भी किया जाता था, बहुत लोगों को जेल भरते थे, बहुत तंग भी करते थे तब। और यहाँ पे पूरे एक जो जातियों के लैंडलॉर्ड्स थे, सबने अपनी अपनी सेना भी बनाई। हाँ, रणबीर सेना का भी नाम आप लोग गूगल में चेक कर लेना, वो सबसे लेटेस्ट सेना वहाँ पे रणबीर सेना ही थी, जिसने 1 दिसंबर 1997 को 58 दलित्स को मार दिया। मतलब सोन रिवर क्रॉस करके उस साइड से आए रात में, सीधे वो बैंक में ही 3 मछुआरे उनको मिले, वहीं पे तीनों को ढेर कर दिया। उससे आगे मतलब उसको गोली नहीं चलाई ताकि कोई सुन ना ले, तो चाकू से मार दिया। और आगे जाके जो दलित टोला था, उसमें घर घर जाके सीधे 58 पीपल इंक्लूडिंग विमेन एंड चिल्ड्रन को उन्होंने ख़त्म किया। दिस वॉज द लार्जेस्ट मैसेकर इन द हिस्ट्री ऑफ बिहार एंड द कंट्री ऑफ दलित्स एट द टाइम। एंड इन बिहार देयर इज़ अ पैरेलल हिस्ट्री। नक्सलाइट मूवमेंट का जब आप हिस्ट्री देखते हैं, जो मैं अध्ययन कर रही थी, तो उसका पैरेलल हिस्ट्री है आपको ये अपर कास्ट सेनाज एंड मैसेकर्स का। यू हैव अ होल हिस्ट्री, कब से वो लोग जो भी अपने अधिकार के लिए लड़ रहा है, उसका मैसेकर करने का उनका ये सब चल रहा था। तो लोगों से मतलब बार बार ये बात आती थी कि तुम हमको कुछ भी बता दो, नक्सली बोलो, कुछ भी बोलो, मगर हम कौन है, हम तो केवल 3 किलो अनाज के लिए लड़ रहे हैं।
तो 3 किलो अनाज उस समय अगर मैं मॉनेटरी इसमें कन्वर्ट करती थी तो वो मिनिमम वेज के कम आता था, क्योंकि इन लोग को उस समय 1.5 किलो देते थे, और वो भी क्या था, वेट से नहीं देते थे, वो बटकरा से देते थे, मतलब कुछ पत्थरों से वेट करके देते थे। ग्रेन उनको खसाड़ी करके ग्रेन है वो दिया जाता था, जिससे पैरालिसिस भी होता है। हाँ, तो इवन लाइक आइदर राइस और वीट ये भी नहीं देते थे। सो इस तरह का, तो ये गरीब मजदूर ये बोल रहा था मुझे कि मैं क्यों लड़ रहा हूँ, मुझे आप नक्सली बोलो, मेरे को क्या फ़र्क पड़ता है, आप मुझे कुछ भी बोल लो, क्योंकि मैं तो इसका शब्द नहीं जान रहा हूँ, मैं क्यों लड़ रहा हूँ, मैं मेरे 3 किलो अनाज के लिए लड़ रहा हूँ। और सच्चाई हमारे देश की कि उस समय एक गरीब मजदूर को 3 किलो अनाज के लिए वहाँ पे मैसेकर्स हो रहे थे। कहाँ थी सरकार, कहाँ थी पुलिस आती थी गांव में जब, तो वो अपर कास्ट के घर में जाके सोती थी, वहीं जाके खाती थी। ये आपको हमारे कई बॉलीवुड फिल्म्स में भी आपको ये दिख जाएगा चित्र। हाँ, तो ये आपको पूरा, जब हम पूरे हमारे देश का जब हम विश्लेषण करते हैं, हाँ, हम आज़ादी 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 हम लोग बोलते हैं, ये हम लोग को, और ख़ास करके जो भी हम में से पढ़ लिख गया, क्योंकि इट्स अ ग्रेट प्रिविलेज टू हैव बीन एजुकेटेड। सो वंस वी हैव दैट प्रिविलेज, वंस वी हैव, हम अक्षर ज्ञान आ गया, केवल अक्षर ज्ञान इनफ नहीं है, उसके साथ आपको पढ़ना है, आपको समझना है, आपको सोसाइटी का विश्लेषण करना है, और ख़ास करके उनके हित के लिए जो नहीं पढ़ पाए, वो भी हमारे देश के नागरिक हैं, उनको समान अधिकार है, हम उनसे बड़े नहीं हैं, मगर ऐसा कुछ हो गया कि हमको शिक्षा प्राप्त हो पाई, उनको नहीं हो पाई, तो उनके हित से सोचना, उनके हित के पॉइंट ऑफ व्यू से समाज का, सोसाइटी का, गवर्नमेंट का, पॉलिटिकल पार्टीज का, उनके बयानों का, उनकी एक्शंस का, हर एक चीज का विश्लेषण करना बहुत जरूरी है। तो ये नक्सली मूवमेंट उस समय तो अंडरग्राउंड भी था और ओपन भी था, और जो उनका खास करके जो ओपन मूवमेंट था उसमें हजारों की संख्या में मजदूर वहाँ आते थे, वो अपनी लड़ाई को इज्जत की लड़ाई बोलते थे और नक्सलियों को गरीबों की पार्टी बोलते थे। मगर नक्सली मूवमेंट का बहुत बड़ा इतिहास है, उसमें बहुत नक्सलाइट अलग अलग पार्टीज है, इसलिए सबके लिए मैं नहीं बोल रही हूँ। मतलब जैसे आज के दिन में सीपीआई माओइस्ट जो बस्तर में है वो कम्प्लीटली अंडरग्राउंड पार्टी है। तो इतिहास समझने के लिए भी आपको अलग अलग एरियाज का, जैसे मैंने कहा, वो समझने की आवश्यकता होगी। I think but it's been really interesting knowing the other part of what we face. We'll open the session for the audience. Do you have any questions in the audience? Yeah. गुजरात में काम किया नॉन क्रेडिट लोगों की, तो वहाँ पे जो वेजेस तो ब्यूरोक्रेट्स ने जो पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करते थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, वो आपका क्या अनुभव है? नीचे तक पॉलिसी पहुँचाते थे या नहीं पहुँचाते, क्या होता था गुजरात में जहाँ पे आपने काम किया? देखिए, गुजरात में इन कंपेरिजन तो बिहार, मुझे लगा गुजरात बेटर था, मगर फिर भी मतलब जहाँ मैं काम करती थी वहाँ तो मतलब गरीबों के बीच ही मेरा काम था, तो श्रमजीवी वर्ग के बीच में ही थे। और जो मैंने पहले आपको बताया कि वो 1962 का गवर्नमेंट रेजोल्यूशन बना हुआ है, जो उन्होंने इम्प्लीमेंट ही नहीं किया, लोगों को बताया भी नहीं। तो इसीलिए हमको क्लास दिखता है कि इस तरह से वर्ग, जो मतलब किसी को तो पता था कि वो रेजोल्यूशन क्या कहता है, तो उन्होंने जो, क्योंकि ये भी एक लंबी कहानी है, मगर इसमें मैं आपको बस इतना ही कहूँगी कि वहाँ पे बिहार से थोड़ा बेटर था, मतलब इम्प्लीमेंटेशन था, पर सभी परफेक्ट नहीं था, इसलिए वहाँ पे भी संगठनों और वहाँ पे क्योंकि प्राइवेट वायलेंस इस तरह से कि मजदूरों पर आप अपने लैंडलॉर्ड, मतलब आपका आदमी और आप अपने मसलमैन को, लड़के को या मजदूरों पर बरसा सकते हैं,
ऐसा गुजरात में नहीं था। तो वहाँ पे फिर भी मतलब मजदूरों की स्थिति जिधर मैं काम कर रही थी बिहार से तो the thing is, the inequality is often a part of a system that has been inherited. So there is some inequality of that kind, which continues to get perpetuated in the name of tradition or parampara. So वो मुझे लगता है कि जब आपके अंदर शिक्षा है तो वो आपको उस तरह की परंपरा, जैसे कई बार आपके माता पिता आप जिस कम्युनिटीज में हैं वो लोग बहुत अच्छे लोग हैं, मगर कई बार क्या होता है कि वो लोग फॉलो करते हैं ब्लाइंडली कुछ तरह की परंपरा है, मगर उन परंपराओं का अगर आप ध्यान से मतलब आपको आप लोगों को जो नई पीढ़ी है आप लोगों को देखना पड़ेगा कि क्या इस तरह की परंपरा किसी को एक्सक्लूड कर रही है, किसी को अलग नजरिए से देख रही है। So anything which is perpetuating any kind of an inequality, इसके खिलाफ सतर्क रहना है। I think that is informed individual। अभी आप छत्तीसगढ़ में काम कर रही थी? नहीं, मैं स्वतंत्र मानवाधिकार कार्यकर्ता और बस्तर में your personal story, your personal life story that you told in the beginning itself is a very remarkable one. As a writer, author, historian, activist as well, the book that you hold before you is itself a testimony of years of, I think, research, rigorous research. Once a book is out, based on so much of work that you have done, right? As a writer, what do you expect? How do you expect a book such as this, which needs to go beyond a literary festival, to voice the concerns and reach the ears of the very same people about whom you have written from the margins? So is there a feeling of disappointment, as personally as a writer and activist, when the work that you have for so many years, when it doesn't actually have any impact upon their own lives? Or if it does, then in what way do you think it will? Well, you're very right that in the very same communities, I think these essays will not reach until the book is translated or even the translated is reached to them. At the same time, somewhere, I think, when I was writing, I was also writing for the others. I mean, not to read people of that from but also all of us, in some ways, who may not have got the chance to travel to some of these parts which I work. And in some ways, through this book, I'm just inviting others to share my journey and share the truth, if I may say so, or whatever I found, to be able to share that journey with others. I mean, then, therefore, I mean, the title of your book is so apt, India's Forgotten Country, because the stories that you bring based on the fact are basically what we call smaller histories, isn't it, of larger narratives. By the way, I'm Prantika, I teach in the college here. Thank you, it was very, very interesting listening. I think we've run out of time. So, sir, your question, I'll take it out, if you don't mind. Thank you so much, ma'am. It was such a pleasure interacting with you. Thank you so much. Thank you.